So writing task 1 and writing task 2, these writing tasks are all about your sentence structures. So welcome again to my channel. In this video, we'll discuss different types of sentence structures that will make your writing task 2 essay more impressive, and definitely you can score 7+ bands. And in the end of this video, I'll be discussing two important tips. So make sure to watch this video till the end so that you don't miss any of the single tip from this video. So without wasting further time, let's get started. First of all, these types of sentence structures will definitely give you 7+ bands. And today we are going to discuss wide method of sentence structures for writing task 2 essay. Wide sentence structure. So first of all, what does W mean? Wide, W-I-D-E, wide method of sentence structure, so that you don't forget any of these sentence structures to write down in your essay. Let's start with W. W means whether, or you can alternatively use whether or not. So I have also written some of the examples here. You can pause this video or take a screenshot whenever you want. So whether, where you can use whether sentence. First of all, how it can be used. So here the example is, it has been a hot debate. That means ये बहुत एक debatable topic है. Whether, जहाँ पे मैंने whether use कर दिया. Whether is a connector. Whether schools should teach moral values to learners along with conventional studies. Conventional studies means traditional method of studies. स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ स्टडीज तक ही है या स्कूल्स को मॉरल वैल्यूज भी टीच करनी चाहिए? तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे भी शो होगा. तो इस क्वेश्चन को मैंने रीफ्रेज करा है, वेदर लगाकर मैंने इसको रीफ्रेज करा है. तो दिस इज हाउ यू कैन रीफ्रेज योर क्वेश्चन बाय यूजिंग कनेक्टर वेदर. This is a very good method and very good sentence structure which you can use to boost up your writing task score. So once again हम देख लें इसमें क्या लिखा है. It has been a debatable topic. आप ये वाला फ्रेज हर एक क्वेश्चन में यूज कर सकते हो. उसके बाद लगाना है आपने वेदर. ये फ्रेज यूज कर लिया, देन आपने लगाना है वेदर. वेदर उसके बाद क्वेश्चन को आपने रीफ्रेज कर दिया. स्कूल शुड टीच मॉरल वैल्यूज अलॉन्ग विद, क्वेश्चन में था एंड या कुछ भी था, अलॉन्ग विद कन्वेंशनल स्टडीज. या एक और मेथड है इसको लिखने का, वेदर और नॉट. उसको मैंने रिफ्रेज कैसे करा? अगेन आपने स्टार्टिंग करनी है फ्रेज के साथ ही, फ्रेज के बिना स्टार्टिंग आपने नहीं करनी, वो क्वेश्चन सही तरह से नहीं बनेगा. तो कैसे बनेगा? इट हैज बीन अ हॉट डिबेट, सेम रहेगा फ्रेज. वेदर स्कूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग मॉरल वैल्यूज टू स्टूडेंट्स और नॉट. यहाँ पे मैंने वेदर और नॉट यूज किया. ऊपर मैंने सिर्फ वेदर यूज किया था तो मैंने फुल स्टॉप डाला इन दी एंड. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, वेदर और नॉट का स्ट्रक्चर यूज किया. मैंने यूज किया यहाँ पे वेदर और नॉट. तो इसमें यहाँ पे एंडिंग पे क्वेश्चन मार्क आपने लगाना नहीं भूलना. पंक्चुएशन मार्क्स आर ऑल्सो वेरी important while writing your essay, so don't forget to use question marks, commas and full stops wherever necessary. So I hope this sentence structure is clear. Wide का W आपको clear है. ये आपने use कहाँ करना है? When you are rephrasing your question. This is a very easy and quick method for rephrasing your question. So coming on to the I पे आप use कर सकते हो in spite of. इन स्पाइट ऑफ का अगर हम पंजाबी में मतलब सोचें तो इसका होता है बजाय के. ठीक है, इसको हमने यूज कैसे करना है? इन स्पाइट ऑफ हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या हो गया? बावजूद भी. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, कॉमा, अगेन पंक्चुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ही गॉट द जॉब. मतलब क्या हो गया? अगर आपके पास दो कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस हैं, दो कंट्रास्टिंग व्यूज हैं, अलग अलग अपोजिट व्यूज हैं, वहां पर आपने इन स्पाइट ऑफ यूज करना है. ठीक है, अगर जहां पर भी आपके पास दो अपोजिट व्यूज हैं, कंट्रास्टिंग व्यूज हैं, वहां पर आपने इन स्पाइट ऑफ यूज करना है. And a very good thing about this sentence structure is it is a two-way sentence structure.
टू वे मतलब इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो आपने यूज कर दी यहाँ पे स्टार्टिंग में कि इन स्पाइट ऑफ हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड कॉमा ही गॉट हिज जॉब, ये था फर्स्ट वे। अब सेकंड वे क्या है इसका, इसका सेकंड वे हो जाएगा ही गॉट द जॉब, ये पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा इन स्पाइट ऑफ हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड। सिंपल, ये लाइन पहले आ जाएगी, ये लाइन सारी बाद में आ जाएगी और कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पर लिख के भी शो हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा मैंने ही गॉट द जॉब इन स्पाइट ऑफ हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड। इन स्पाइट ऑफ को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या है, बावजूद के, बजाय के भी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उसको एक अच्छी जॉब मिल गई। मूविंग ऑन टू दी डी, डी इज डिस्पाइट। नेक्स्ट कम डी, डी मीन्स डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब भी बिल्कुल सेम है जैसे हम इन स्पाइट ऑफ का मतलब देखा। डिस्पाइट का मतलब भी वही है, बावजूद के। फॉर एग्जाम्पल, जॉन्स कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल डिस्पाइट रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है गिरावट, इकोनॉमी में गिरावट होनी है, जिन्हों से कहना है भी मंदी छाई हुई है। ठीक है, उसका मतलब होता है रिसेशन। तो जॉन की कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है रिसेशन के बावजूद भी। वही बात आ गई जैसे हमने इन स्पाइट ऑफ का देखा, बावजूद के, क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उसको जॉब मिल गई। वैसे ही क्या है, डिस्पाइट द रिसेशन जॉन्स कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अगेन दिस इज अ टू वे सेंटेंस। टू वे कैसे होगा, मैंने पहले यहां पे लिख दिया सेंटर में, ठीक है, सेंटर में लिख दिया। अब सेकंड वे क्या होगा, डिस्पाइट रिसेशन, सेकंड वाला पहले आ जाएगा, डिस्पाइट रिसेशन कॉमा जॉन्स कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो एक बात यहां पे बहुत ही अच्छे से नोट करने वाली है, अगर आप जो कनेक्टर्स है पहले स्टार्टिंग में यूज कर रहे हो, चाहे इन स्पाइट ऑफ है चाहे डिस्पाइट है, अगर आप पहले यूज कर रहे हो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हो, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस के बाद कॉमा आएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आप स्टार्टिंग में कनेक्टर यूज करते हो तो कॉमा आएगा ही आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इन स्पाइट ऑफ हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड कॉमा ही गॉट हिज जॉब, तो कॉमा डालना बहुत जरूरी है इफ यू वांट 7 एंड अबव। तो अगर हम यूज कर रहे हैं सेंटर में तो कहीं पर भी कॉमा नहीं आएगा। ये दो चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को टू वे तरीके से यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में और सेंटर में। और दूसरी बात क्या है, अगर हम स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं तो कॉमा आएगा, सेंटर में यूज कर रहे हैं तो कॉमा नहीं आएगा। आई होप दैट्स क्लियर। सो WID तीनों हमारे हो गए। तो इसको अब यूज कहां पे करना है, इन BP1 BP2 एनीवेयर यू कैन यूज टू मेक योर राइटिंग ऐसे मोर इंप्रेसिव। कहीं पर भी आप इनको यूज कर सकते हो। तो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज E। तो ई हमारा आ गया इवन दो। अब इवन दो का मतलब क्या है, इवन दो का मतलब भी सेम ही है, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इवन दो, ये तीनों का मतलब सेम है, लेकिन दीज आर डिफरेंट कनेक्टर्स। दे ऑल दीज कैन मेक योर राइटिंग टास्क मोर इंप्रेसिव एंड यू कैन डेफिनेटली स्कोर 7+ बैंड्स। अब देखो मैंने 3 आपको समझाए, अब तीनों का मीनिंग सेम है लेकिन हमने अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही आपकी ऐसे में वैरायटी शो होगी। डेफिनेटली वैरायटी शो होगी, आपके अपना बैंड्स बूस्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल वे था आज का पढ़ाने का। इवन दो को कैसे यूज करेंगे, अगेन कंट्रास्टिंग व्यूज है, जैसे हमने ऊपर किया, दोनों कंट्रास्टिंग लाइंस थी, कंट्रास्टिंग व्यूज थे, वैसे ही ये। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो शी वॉज एग्जॉस्टेड कॉमा शी मैनेज टू फिनिश हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। जबकि वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड मीन्स थकी हुई थी, फिर भी उसने अपना प्रोजेक्ट टाइम पर मैनेज किया, कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हमने इवन तो स्टार्टिंग में लगाया लेकिन कॉमा आया, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है देन दीज टू सेंटेंसेस, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, इवन दो दे हैड लिमिटेड रिसोर्सेज कॉमा दे मैनेज्ड टू क्रिएट अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। ठीक है, इवन दो दे हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज कम थे लेकिन फिर भी उन्होंने मैनेज किया, अपना सक्सेसफुल स्टार्टअप उन्होंने खड़ा किया। तो अगर इसको हम डिस्पाइट से करें एक्सचेंज, तो इस डिस्पाइट से इसको कैसे कर सकते हैं कि डिस्पाइट का मतलब भी सेम है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी सेम है,
इवन दो का मतलब भी सेम है, ठीक है। तो अगर हमने डिस्पाइट करना हो तो डिस्पाइट से कैसे होगा, डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज दे मैनेज टू क्रिएट सक्सेसफुल स्टार्टअप, ठीक है। मतलब तीनों का मतलब क्या हो गया, बावजूद के या बजाय के। और दूसरी बात यूज कहां पे होंगे, जब वी हैव टू अपोजिट और कंट्रास्टिंग व्यूज। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है, तीनों का मतलब सेम है, बजाय के या बावजूद के। दूसरी बात क्या है, इसको आपने यूज कैसे करना है, टू कंट्रास्टिंग व्यूज हैं जब आपके पास, टू अपोजिट व्यूज हैं जब आपके पास, वहां पर आपने ये तीनों को यूज करना है। तो हमने 3 सेंटेंसेस सीखे जिनका मीनिंग सेम है बट हैं ये अलग अलग। इन तीनों को आप BP1 में, BP2 में कहीं पर भी लिख सकते हो। और हम आगे वाले सेशंस में और भी ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स करेंगे जिनके साथ आपके बैंड्स और बूस्ट होंगे। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, यहाँ पर एक आपके पास स्टेप है नोट करने वाली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सो लिसन केयरफुली। टिप नंबर 1 हेयर इज, डिस्पाइट को हमने डिस्पाइट ही लिखना है। बच्चे यूजुअली क्या लिख देते हैं, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ रिसेशन। डिस्पाइट ऑफ लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। डिस्पाइट ऑफ का यूज हमने नहीं करना, मेक श्योर हमने डिस्पाइट ऑफ का यूज नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट चीज क्या है आपके पास, डिस्पाइट ऑफ इज अ रॉन्ग फॉर्मेशन। टिप नंबर 2, टिप नंबर 2 इज आपने इंस्पाइट ऑफ जब लिखना है, इंस्पाइट को आपने इकट्ठा नहीं लिखना। इन अलग है, स्पाइट अलग है, ऑफ अलग है। दीज आर 3 डिफरेंट वर्ड्स। इन अलग है, स्पाइट अलग है, ऑफ अलग है। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे, अगेन आपके जो बैंड्स हैं डिडक्ट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। सो मेक श्योर एग्जामिनर को आपकी ऐसे में ग्रामर मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सब कुछ ना मिले। अगर आप सिंपल भी लिखते हो लेकिन आपकी एग्जामिनर को कोई मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी तो डेफिनेटली आपके 6.5 बैंड्स भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंटेंसेस की वैरायटी यूज करोगे तो आपके डेफिनेटली 7 एंड अबव आ सकते हैं। तो अब से आपने क्या करना है, आपने इन सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अपने ऐसे में लिखना शुरू करना है, प्रैक्टिस आपने स्टार्ट करनी है। एंड अपने वाइड के, सभी ने जो वीडियो देख रहे हैं, वाइड के सेंटेंसेस एक एक एग्जांपल कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल चेक दो सेंटेंसेस। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट IELTS preparation, IELTS material, anything, you can comment me in the comment box below. Thanks for watching. Like, share and subscribe.